તો નજર કરીએ વિગતવાર સમાચારો પર મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં અકસ્માત થવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવે છે. વાયુસેનાના 2 વિમાનોને અકસ્માત નડ્યો છે. ગ્વાલિયર એરબેઝથી ઉડાન ભરી હતી. સુખોઈ 30 અને મિરાજ 2000માં બનાવ બન્યો છે. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. હેલિકોપ્ટર ટેકનિકલ ખામીના કારણે ક્રેશ થયું છે. બીજી તરફ આ પ્લેન પણ ક્રેશ થયું છે. 2 ઘટનાઓ જોવા મળી રહી છે. ભારતની આ પ્રકારની પ્રથમ ઘટના છે કે જેમાં 2 વિમાનો જે લડાકુ વિમાનો છે તે સામસામે અથડાયા છે. એરફોર્સનું એક સુખોઈ છે, બીજી બાજુ મિરાજ જે ફાઇટર પ્લેન છે. આ બંને એક સાથે અથડાયા. બંને પ્લેન ગ્વાલિયરના એરબેઝથી ઉડ્યા હતા. એક મુરૈનામાં અને બીજું ભરતપુરમાં પડ્યું. એક પાયલટનું મોત પણ થયું છે. તો શનિવારે સવારે સુખોઈ 20 અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટ એકબીજાને એક સાથે ટકરાઈને ક્રેશ થતા દુર્ઘટના સર્જાય છે. તો આપને જાણીએ કે ટકરાયા બાદ બંને પ્લેન 2 અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પડ્યા હોવાની આશંકા જોવા મળી છે. એક મધ્યપ્રદેશના મુરૈનાના પહાડગઢમાં અને બીજું રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં તૂટ્યું હોવાની પણ વાતો વહેતી થઈ ગઈ છે. તો દુર્ઘટનામાં ક્રેશ થયેલા બંને ફાઇટર જેટે ગ્વાલિયરના એરબેઝથી ઉડાન ભરી હતી અને દુર્ઘટનામાં એક પાયલટનું મોત થયું છે. જો કે એરફોર્સે તે અંગેની અત્યારે પુષ્ટિ કરી નથી. સુખોઈ 20 અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થતા દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. ડિફેન્સના સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે કે મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં ફાઇટર પ્લેન ક્રેશ થયા હતા અને એરફોર્સનું સુખોઈ 30 MKI અને એક મિરાજ 2000 ક્રેશ થયું છે. બંને એરક્રાફ્ટે ગ્વાલિયર એરબેઝથી ઉડાન ભરી હતી. એરફોર્સના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા છે. મુરૈનાના કલેક્ટર જણાવી રહ્યા છે કે 3માંથી 2 પાયલટને બચાવી પણ લેવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ કલેક્ટરે જણાવ્યું કે 2 પાયલટને બચાવી લીધા બાદ તેમને હોસ્પિટલે પણ ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં પણ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. દુર્ઘટનાના ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યોમાં. ભરતપુરના ડીએસપી જણાવી રહ્યા છે કે સવારે 10:15 વાગે ક્રેશ થયું હતું. અને રાજસ્થાનના ભરતપુરના ડીએસપી અજય શર્મા જણાવતા હતા કે આજે એરફોર્સનું ફાઇટર જેટ છે જે ક્રેશ થયું છે. જે હજી સુધી વાત મળી રહી છે કે પાયલટની બાબત જાણી શકાય નથી. પાયલટની અત્યારે શું સ્થિતિ છે તે હજી સુધી જાણી શકાય નથી. આપણે જણાવી દઈએ કે સુખોઈ 30માં 2 પાયલટ હતા અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટમાં એક પાયલટ હતા. મુરૈના પાસેથી 2 પાયલટ મળી આવ્યા છે જેમને ગ્વાલિયરની MH હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ત્રીજા પાયલટની તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી. આપણે જાણી દઈએ કે જે દુર્ઘટના સર્જાઈ છે, પ્લેન ક્રેશ થવાની ઘટના જોવા મળી રહી છે. ભારતની આ સૌ પ્રથમવાર ઘટના જોવા મળી હશે કે 2 લડાકુ જ વિમાનો આમને સામને ટકરાયા છે અને તેના જ કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. સવાલ એટલા માટે ઊભા થઈ રહ્યા છે કે પ્લેન ક્રેશ થવાની ઘટના વારંવાર સાંભળવામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સામે આવી રહી છે. મધ્યપ્રદેશમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. આ 2 મોટી દુર્ઘટના જોવા મળી રહી છે. 2 લડાકુ વિમાન ક્રેશ થયા છે. રાજસ્થાનમાં ચાર્ટર પ્લેન ક્રેશ થયું છે. દેશમાં એક સાથે 3 વિમાન દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં વાયુસેનાના સુખોઈ 30 અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયા છે. તો રાજસ્થાનમાં એક ચાર્ટર એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયું છે. તો આજે એક સાથે 3 વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવતા હડકંપ મચી ગયો છે. પ્રાથમિક વિગતો પણ સામે આવી છે કે મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં વાયુસેનાના સુખોઈ 30 અને મિરાજ 2000 એમ 2 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયા છે. સાથે રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં પણ એક ચાર્ટર એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયું છે. મધ્યપ્રદેશમાં 2 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયા છે. મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં શનિવારે સવારે એક મોટો અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં વાયુસેનાના સુખોઈ 30 અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયા છે. તો મધ્યપ્રદેશમાંથી આ માહિતી મળી રહી છે. અત્યારે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ડિફેન્સના સૂત્રો છે કે તેમના તરફથી આ વિગતો મળી રહી છે. અને આપણે જાણીએ કે રાજસ્થાન ખાતે પણ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં એક ચાર્ટર એરક્રાફ્ટ અકસ્માતનો શિકાર બન્યો છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે ટેકનિકલ ખામીના કારણે પ્લેન ક્રેશ થયું હતું.
આ પ્લેન યુપીના આગ્રાથી ટેક ઓફ થયું હતું અને આ અકસ્માત ભરતપુર જિલ્લાના ઉજ્જૈન વિસ્તારમાં થયો છે. તો રાજસ્થાનના ભરતપુર જિલ્લાના ઉજ્જૈન વિસ્તારમાં યુપીના આગ્રાથી ઉડતું ચાર્ટર એરક્રાફ્ટ થયું હતું અને જેને લઈને અરાજકતાનો માહોલ છે. આસપાસના લોકો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા છે. ત્યારે આ જગ્યા અમારી સાથે ચર્ચા કરવા માટે મધ્યપ્રદેશથી લલનસિંહ સિદ્ધાર્થ જોડાઈ ગયા છે. તેમની પાસે જઈને ચર્ચા કરીએ. ललन सिंह, आपका स्वागत है. ललन सिंह, आपको मेरा आवाज सुनाई देता है कि नहीं? તો લલન સિંહ પાસે સવાલો પૂછીશું અને જાણીશું. સંપર્ક કપાઈ ગયો છે, પરંતુ ફરીથી સંપર્ક સાધવાનો પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ રક્ષા વિશેષક છે. તમને પણ ઘણી બધી માહિતીથી વાકેફ હોય છે તેઓ, અને આજે તેમની પાસેથી જાણીશું કે પ્લેન ક્રેશ શા માટે થાય છે, એવી કયા પ્રકારની બાબત હોય છે કે જે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાની જરૂરિયાત હોય છે. અત્યારે આ જે દુર્ઘટના સર્જાય છે તે લઈને ખૂબ જ ખળભળાટ મચી ગયો છે. મધ્યપ્રદેશમાં દોડાદોડી થોડા સમય માટે થઈ ગઈ હતી. જ્યારે પ્લેન ક્રેશ થયું ત્યારે ધડાકાભેર અવાજ આવ્યો. એટલો જોરદાર અવાજ આવ્યો કે આસપાસના લોકો ત્યાં દોડી આવ્યા અને જોયું તો ત્યારે અગ્નિની જ્વાળા ભડકે પડતી હતી અને તેના જ કારણે ત્યાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા પણ જોવા મળ્યા હતા. આપ જોઈ શકો છો મધ્યપ્રદેશના મુરૈનાની આ ઘટના છે કે જ્યાં લોકો ડીંગો જમાવીને બેસ્યા છે. આસપાસ લોકો દોડાદોડી કરતા જોવા મળ્યા અને જે રીતે આ દુર્ઘટના સર્જાય છે એ ખૂબ જ મોટી દુર્ઘટના છે. એક સાથે બે લડાકુ વિમાન આમને સામને ટકર્યા છે. આ સૌ પ્રથમવાર ભારતમાં એવી ઘટના બની છે કે જેના જ કારણે અત્યારે ચર્ચા વેગે થઈ રહી છે. મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં આ સૌ પ્રથમવાર ઘટના છે. બે લડાકુ વિમાનોને જ આ અકસ્માત નડ્યો છે. એક સુખોઈ છે અને બીજું જે છે તેમાં 2000 જે મિરાજની વાત છે. આ બંને વિમાનો સામે ટકરાયા હતા એક સાથે જ અને તેના જ કારણે ધડાકા પર અવાજ આવ્યો. લગભગ કહેવાય છે કે 1 કિલોમીટર સુધી અવાજ સંભળાયો હતો આનો, અને સીધું જ જ્યારે પ્લેન ક્રેશ થયું ત્યારે નીચે પટકાયું. જોરદાર અવાજ આવતાની સાથે જ અને અગ્નિ જ્વાળાઓ પણ ફાટી નીકળી હતી. આગ ફાટી નીકળી હતી તેના જ કારણે ધુમાડાના ગોટે ગોટા દેખાઈ પણ રહ્યા છે. અહીંયા પાયલટની સ્થિતિ કેવી છે તે અત્યારે સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. એક તો માહિતી સૂત્રો તરફથી એ પણ મળી રહી છે કે પાયલટનું મોત થયું છે, એક પાયલટનું આ દુર્ઘટનામાં. આપને જણાવી દઈએ કે પ્લેન ક્રેશ થવાની ઘટનાઓ ઘણી બધી વાર જોવા મળતી હોય છે અને ભારતમાં આ પ્રથમવાર એવી ઘટના જોવા પડી રહી છે કે બે લડાકુ જ વિમાન આમને સામને ટકરાયા છે. તો એક સાથે 3 જગ્યાએ આ પ્રકારની ઘટનાઓ જોવા પડતી હોય છે અને તેના જ કારણે, કારણ કે બીજી જે ઘટના છે રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં ઘટના જોવા મળી રહી છે. ત્યાં પણ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાની ઘટના છે. ચાર્ટર્ડ હેલિકોપ્ટર છે, એરક્રાફ્ટ છે કે જે ક્રેશ થયું છે. પાયલટની ત્યાંની પરિસ્થિતિ કેવી છે તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે. આ સમાચાર તરફ નજર કરીએ. દેશમાં એક સાથે 3 વિમાન દુર્ઘટના સર્જાય છે. મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં વાયુસેનાના સુખોઈ 30 અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયા છે. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં પણ ચાર્ટર્ડ એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયું છે. તો આ પ્રકારની દુર્ઘટનાઓ સામે આવતા અત્યારે ચર્ચા ઘણી બધી થઈ રહી છે, કારણ કે એકંદરે આ કયા કારણસર દુર્ઘટના સર્જાય છે સૌપ્રથમ તો તે જ જાણવાની જરૂરિયાત લાગી રહી છે. બીજી તરફ વારંવાર વિમાનોની આ દુર્ઘટના શા માટે થઈ રહી છે, પાયલટ શું ધ્યાન રાખી રહ્યા તે પણ સવાલ છે. પાયલટે શું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે, હવે સજાગ રહેવાની જરૂર છે પાયલટે પણ, કારણ કે આમને સામે જ્યારે લડાકુ વિમાનો જ ક્રેશ થયા છે ત્યારે અત્યારે સવાલો કેટલાય ઊભા થઈ રહ્યા છે.
તેમાં અત્યારે વાતાવરણના કારણે આ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના છે કે શું જવાબદાર કારણ છે તે અત્યારે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે આ જે દુર્ઘટના છે એ સામાન્ય દુર્ઘટના નથી. પાયલટની અત્યારે સ્થિતિ કેવી છે તે અત્યારે સૌથી મોટો પ્રશ્ન ઊભો થઈ રહ્યો છે. સૂત્રો તરફથી તો ડિફેન્સના સૂત્રો તરફથી તો માહિતી મળી રહી છે કે એક પાયલટનું મોત થયું છે, પરંતુ હજી અન્ય 3 પાયલટની હાલત કેવી છે, કારણ કે સવારના સમયે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. ત્યારબાદ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સુખોઈ 30 અને મિરાજ 2000 એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થવાની ઘટના મોરેનામાં બની છે, મધ્યપ્રદેશના નજીકના વિસ્તારની અંદર. અને અત્યારે 2 એરક્રાફ્ટ આમને સામને અથડાના કારણે જ આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે તેવું જાણવા મળ્યું છે. વધારેમાં વધારે સ્પીડ હોવાના કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોય તેવું પ્રાથમિક અનુમાન સેવવામાં આવી રહ્યું છે. એક મિશન અંતર્ગત ઉડાન ભરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આ દુર્ઘટના પણ પ્રકાશમાં આવે છે. તો ડિફેન્સના સૂત્રો તરફથી માહિતી મળી રહી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે એક મિરાજ છે અને બીજું સુખોઈ છે. બંને લડાકુ વિમાનો છે અને બંને આમને સામને અથડાયા હતા. આ વિમાનોની અંદર 3 જેટલા પાયલોટ્સ હતા અને એક પાયલટને તો ગંભીરમાં ગંભીર ઈજા પહોંચે છે. તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલે પણ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આપણે જણાવી દઈએ કે ફાઇટર જેટ પ્લેન છે, એરક્રાફ્ટ છે કે જે આમને સામને અથડાયા છે. ત્યારે આ અંગે ચર્ચા કરવા માટે મધ્યપ્રદેશથી સીધા જ લલનસિંહ જોડાઈ ગયા છે. આવો તેમની પાસે જઈને જ ચર્ચा કરીએ. ललन सबसे पहले आपका स्वागत है. ललन सिंह, ये दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, किस वजह से होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्फॉर्मेशन दीजिए. जी, मैं पहले ये बताऊं कि ग्वालियर एयरबेस से, जो हिंदुस्तान के इंडियन एयरपोर्ट का बहुत जबरदस्त एयरबेस है, वहां से ट्रेनिंग जो नियमित अभ्यास होती है उसमें सुखोई 30 MKI और मिराज दोनों फाइटर अपने नियमित ट्रेनिंग के लिए उन्होंने उड़ान भरी. लेकिन ये तकनीकी कारण या कोई मिसकम्युनिकेशन के कारण 2-3 तरह के डॉग फाइटिंग होते हैं, बॉम्बिंग ऑपरेशन की प्रैक्टिस होती है और भी कुछ टेक्निकल प्रैक्टिस होते रहते हैं. तो इसी दौरान इनके दोनों के विंग जो है वो टकरा गए, जैसा इंडियन एयरफोर्स का सूत्र बता रहे हैं. मैं ये बताना चाहता हूं कि सुखोई 30 और जो अपना मिराज 2000 है, ये दुनिया के अंदर इसको पूरी तौर पे इसको सक्षम और काबिल तारीफ जेट लड़ाकू विमान माना जाता है. लेकिन ये हादसे का कारण क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान इनको डॉग फाइटिंग या बॉम्बिंग फाइटिंग की प्रैक्टिस जब होती है तो उसमें कुछ दूरी रखा जाता है. लेकिन अचानक चाहे वो तकनीकी किसी एक विमान के अंदर गड़बड़ी हुई या कोई भी कारण हो और दोनों का जो विंग है वो टकरा गया और ये बहुत बड़ा भयंकर हादसा हो गया, जिसमें एक पायलट की शहादत हो गई और 2 पायलट जो एडमिट हैं वो बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से वो घायल हैं. मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो एयरबेस से उड़ान भरा गया था, ये पूरी तौर पर तकनीकी इनकी निरीक्षण करने के बाद ये उड़ान भरते हैं और ये एवरी डे इनकी ट्रेनिंग होती है और जो ट्रेनर हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ इंडियन एयरफोर्स के जो एयरबेस ग्वालियर में रखे जाते हैं. लेकिन ये हादसा सीडीएस, रक्षा मंत्री और इंडियन एयरफोर्स के चीफ तीनों मिलकर इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और इंडियन आर्मी के लोग उस इलाके को पूरी रेस्क्यू कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जो एयरफोर्स का कोड ऑफ इंक्वायरी है वो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लगेगा कि इसके खास और क्यों इस तरह का इंसिडेंट हुआ. और ये एयरफोर्स के लिए बहुत ही दुखद और बहुत नुकसानदेह, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इतने काबिल जो लड़के हैं, जो यंग पायलट हैं, उसमें एक की शहादत हो गई है और जो 2 एडमिट हैं, भगवान करे कि वो ठीक हो जाए. लेकिन जो भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी का जो सोच है वो अजय अमर और पूरी तौर पे देश के प्रति समर्पित है
और इस हादसे को पूरी भारत और रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स जी दुखी जरूर है, जी ललन लेकिन सिंह, हम इनके आदत के ऊपर गर्व कर रहे हैं। ललन सिंह आपको बता दिया जाए कि जो आईएफ विमान क्रैश हुआ है मुरैना में, उसमें एक पायलट की मौत हुई है और 2 पूरी तरह से सुरक्षित भी है। ये न्यूज़ आ रहा है आपने ये अभी का अपडेट है और आपको बता दिया जा रहा है। पर ललन सिंह सवाल ये हो रहा है कि ये एक्सीडेंट होता है जब पायलट को क्या ध्यान रखना, कौन सी वजह से ये हो रहा है, वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी क्वेश्चन है, और कौन सी बात है कि पायलट को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जैसा जो पुराने जो पायलट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो मान के चलते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट और जब हादसा होता है तो बाहर निकलने में कुछ सेकंडों का ही समय उनको चाहिए, अन्यथा ये जो जेट और लड़ाकू विमान होते हैं उसमें इतनी ज्यादा इग्निशन होती है, इतनी ज्यादा यांत्रिक उसमें समावेश होता है कि उसको पूरी तौर पे जलने में कुछ समय सेकंडों का लगता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 3-4 कारण इसमें हो सकते हैं। एक तो तकनीकी मौसम की खराबी या मिसकम्युनिकेशन, और दूसरी बात कॉम्बैट जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर डॉग फाइटिंग, बॉम्बिंग का जो इनका ऑपरेशन होता है, और इनके साथ उनकी जो उड़ान की जो हाइट होती है वो उनको एटीसी के द्वारा, उनके एयरबेस के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। अब इसमें कहां पे चूक हुई या क्या तकनीकी किसी सुखोई में या मिराज 2000 में हो गई, और उसी के कारण से जैसा इंडियन एयरफोर्स बता रही है कि दोनों का जो विंग है वो एक दूसरे से टकरा गया और यही कारण था कि ये भयंकर हादसा हुआ। तो इसमें सभी बातों को ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब जो एक्चुअल कारण है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिसको सीओआई एयरफोर्स शुरू कर चुकी है उससे पता चलेगा। उसमें एक चीज बात साफ है कि जो मौसम है वो बहुत अच्छी थी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि जो जेट होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और इग्निशन, और वो इतनी उसकी स्पीड होती है कि वो अगर किसी तरह का हादसा होता है तो पायलटों को भी एग्जिट करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन एक बात आपने जो बताया कि 2 लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 2 पायलट अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक की शहादत हुई है, और जो एक भरतपुर के अंदर एक चार्टर प्लेन का जो हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी मिल रही है उसकी पूरी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मुरैना और भरतपुर बहुत दूरी नहीं है, तो ये भी माना जा रहा है कि मौसम में भी कोई ना कोई धुंधलापन या क्लाउडनेस आज हो सकता है, उसकी भी संभावना बन रही है। तो सभी मिला जुलाकर इस एम सुखोई जो है वो बहुत ही दुनिया के अंदर माने जाने वाली जेट लड़ाकू विमान है, और दूसरा जो मिराज 2000 है उसके ऊपर भी बहुत काबिलियत के ऊपर विश्वास है। लेकिन इस हादसे के बाद जो बहुत पहले बार एक जेट दूसरे जेट के साथ विंग के टकराने से ये हादसा हुआ है, ये देश के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इस तरह की कोई कमी और कोई उसके अंदर रिव्यू के अंदर पता चलता है तो इंडियन एयरफोर्स अगले फ्यूचर के लिए किसी भी तरह का इस तरह का हादसा ना हो इसकी पूरी ध्यान रखेगी। जी ललन सिंह, अब सवाल ये भी है जी ललन सिंह, वहां पे अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी आपने बताया कि, तो फिर वहां पे सेफ्टी पर्पस कुछ रखना नहीं चाहिए था? देखिए, आपने जो बोला सेफ्टी प्रिकॉशन, वो हर ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनर होते हैं बहुत आले दर्जे के ट्रेनर होते हैं, और वो सब लगभग विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के बीच में होते हैं, तो उनकी अपनी बहुत उड़ान की एक्सपीरियंस होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, एयरफोर्स में जब ये ट्रेनिंग होती है तो बताते हैं कि लकड़ी के ऊपर हम अपने पायलटों को ट्रेनिंग नहीं देते, हम तलवारों के बीच में ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने आपको कहा कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग, डॉग फाइटिंग की ऑपरेशन, और तीसरी बॉम्बिंग, जब बॉम्बिंग डालने की जो फाइटरों की कार्रवाई होती है उसकी ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा उनको दी जाती है।
तो उसमें ये दोनों विमान जो कॉम्बैट ऑपरेशन, डॉग फाइटिंग, जो दुश्मन के किसी भी फाइटर के साथ कैसे उनके ऊपर एक्शन करना है, इसकी ट्रेनिंग हो रही होगी। और यही कारण है कि अचानक किसी एक में कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, और ये भी कारण हो सकता है कि कोई भूल चूक भी हुई हो। लेकिन आपने जो कहा, पूरी तौर पे नियमित जो ट्रेनिंग होती है, उसके पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी हैदराबाद, और 8 साल तक नए पायलटों को केवल ट्रेनिंग मुस्तैद ढंग से खास करके फाइटरों के लिए रखी ठीक जाती है है। ललन सिंह, ट्रांसपोर्ट ठीक और है, ठीक है। फाइटर में यही फर्क है। पर पायलट को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे उड़ान भरी जाती है तभी अचानक से ये हादसा होता है, तब क्या उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, इनका जो रिएक्शन टाइम है वो सेकंडों का इनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। उनको पर्सनली उनको इस तरह का माइंड मेकअप किया जाता है कि अगर किसी तरह का कोई हादसा हो तो सेकंडों में आपने एग्जिट करना है, और आपने अगर थोड़ा भी महसूस किया तो आपको कैसे अपने आप को बचाव करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, हिंदुस्तान या दुनिया का जो फौज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, लेकिन उसमें जो एयरफोर्स और जो पायलटों की जो जॉब है, वो बहुत ही कम सेकंडों में उनको रिएक्शन अपना देना पड़ता है। और वो जानते हैं कि अगर कोई हादसा हुआ तो हमें कुछ सेकंड का ही मौका है, अपॉर्चुनिटी है। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो हम एग्जिट करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो बावजूद पूरी ट्रेनिंग के इस तरह की हादसाएं पूरी दुनिया में हो जाती हैं, लेकिन इससे भी बचाव के लिए हमारी एयरफोर्स, हमारे जो फौज के जो पायलट हैं, वो लगातार अपनी कॉम्बैट ऑपरेशन में पूरी तौर पे अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो हुआ हादसा, वो ब्लैक बॉक्स, उनके जो और भी रेस्क्यू में आइटम मिलेंगे, और जो एटीसी से कम्युनिकेशन उनके लास्ट में हुए हैं, और क्या उनको निर्देशन मिला है, इन सभी के ऊपर मुकर्रर है कि इसका सच क्या है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI, ये दोनों ऐसे जेट लड़ाकू हैं जिनके ऊपर हमें किसी भी तरह का शक नहीं है। लेकिन ये हादसा हुआ और इस हादसा का कारण ढूंढना है, और वो COI स्टार्ट हो चुका। लेकिन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ CDS और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री पर्सनली पूरी तौर पे सजग और संपर्क में है, और कुछ घंटों में कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आएंगी, लेकिन कुछ दिन लगेंगे इनकी सच और पूरी रिपोर्ट आने में, इसमें कोई शक नहीं। ललन सिंह, ये भारत की प्रथम घटना है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि 2 लड़ाकू विमान आमने सामने आए और आग का गोला बन चुके, और फिर बाद में ये हादसा सामने दिखता हुआ? ये आपने बहुत प्रश्न सही किया है। इस तरह से आमने सामने टकराने की हमारी फाइटर जेट का इतिहास नहीं रहा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अब तो भारत के अंदर राफेल जैसे नए वर्जन के लड़ाकू विमान आ चुके हैं, जो LAC LOC को पूरी तौर पे मुस्तैदी के साथ उनका कार्य अंजाम की तरफ चल रहा है। लेकिन हमारी इस मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI का इस तरह का विंग का टकरा जाना, ये पहली घटना है। ऐसे हादसे काफी होते रहे हैं। MiG-21 के इससे पहले लंबा इतिहास भी रहा है, हालांकि उसको रिटायरमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन मैडम, एक बात बहुत साफ है कि मिराज 2000 और सुखोई MKI 30 इस तरह का कोई हादसा पहले एयरफोर्स में नहीं हुआ, और ये हुआ है तो इसके ऊपर गंभीरता से पूरी एक्शन होगी, रिव्यू होगा, और भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि जो हमारे पायलट हैं वो अनमोल हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इनकी विदाउट ट्रेनिंग सेकंडों की होती है। ये सेकंड में अपने रिएक्शन देते हैं, सेकंड में बॉम्बिंग, सेकंड में डॉग फाइटिंग, किसी दुश्मन के जेट लड़ाकू, किसी ट्रांसपोर्ट विमान को कैसे बर्बाद करना है उसकी काबिलियत रखते हैं, और तुरंत
अपने बचाव करते हुए वापसी भी करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक तौर पे बहुत सी बातें कुछ समय लगेगा, लेकिन नीड टू नो बेसिस पे काम शुरू हो चुका है। और जो ये हादसा है आज का, वो दुखद है, भयंकर है, और इससे बचाव के लिए आगे और भी इंडियन एयरफोर्स अपना काम करेगी। लेकिन दोनों लड़ाकू जेट के ऊपर कोई शक करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसका जो कार्य क्षमता है, इसकी जो काबिलियत है, और जो नए वर्जन की तकनीक है, बहुत ही बेहतर है। दुनिया में इसका एक रुतबा है। तो अब जो भी अभी कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद पूरी रिपोर्ट आएगी, और फिर इसके बारे में पूरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन जो करना चाहिए वो एयरफोर्स, रक्षा मंत्रालय अवश्य करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पायलट शहादत हुई है उसको नमन, उनको सलूट, और उनके परिवार वालों के साथ पूरा देश, और जो दो हैं भगवान करें वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि दोनों एडमिट है और उनको वहां से रिफर किया जा रहा है किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जो भी है, जी हमारे दो पायलट अभी खतरे से बाहर हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन एक की शहादत हो गई, उसको हम उनको नमन और शहादत को सल्यूट करते हैं। लिलन सिंह, सर्च ऑपरेशन के बारे में बताएं। जब हादसा होता है फिर बाद में क्या वहां पे होता है, कैसे वहां पे प्रोसेस किया जाता है, उससे बारे में। आपने बहुत सही प्रश्न किया। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ये कन्फर्म है एयरबेस से उनका ताल्लुकात एटीसी के साथ रहता है, उनका कंट्रोल हर सेकंडों का लगातार रहता है। जैसे ही पता चलता है कि इस विमान, इस जेट में या ट्रांसपोर्ट विमान में या हेप्टर में कोई हादसा हो गया, तो एक डिस्टेंस उनको मिल जाता है, और उनके लिए एक क्विक रिएक्शन टीम होती है जो हेलीकॉप्टर से रेडी होती है। और आज भी वही हुआ। जैसे ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर जो कि क्विक रिएक्शन टीम के साथ, जिसमें हर तरह की चीजों का समावेश होता है, वो फायर फाइटिंग, उसमें मेडिकल एड्स, और उसमें टेक्निकल जितने भी काम करने के जरूरत के चीजें होती हैं, तो हेलीकॉप्टर उस लोकेशन को तुरंत पहुंचकर, क्योंकि हेलीकॉप्टर को लैंड करने में दिक्कत नहीं होती, और वो क्विक रिएक्शन टीम जिसमें डॉक्टर से लेकर टेक्निकल एक्सपर्ट और मैकेनिक सभी होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें भी ऐसे ही हुआ, और जो आसपास का प्रशासन है वो तुरंत पूरी तौर पे मुस्तैद हो गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी पूरी तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए, और रक्षा मंत्री और एयरफोर्स चीफ के जो पूरे निर्देशन थे, उसमें इंडियन आर्मी जो मुरैना के नजदीक थी, उसमें 5 पार्टियां उस पूरे इलाका को कॉर्डन कर दिया। हालांकि वो रियासी इलाका नहीं था, ये भी एक खुदकिस्मती थी, जिससे कि वो जान माल का खतरा नहीं हुआ। तो सब मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, अगर वो रेंज के अंदर है, अगर वार में है तो बात अलग है, अन्यथा तुरंत उसके ऊपर रेस्क्यू करने जी के लिए ललन सिंह, बचाव दल होते हैं, सूत्रों क्विक से रिएक्शन माहिती टीम मिलती होती है। है, जी और जान हेलीकॉप्टर जी जी उसी जी जी पैटर्न। जी 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 ललन सिंह। तो उस बचाव को मैडम पूरी तौर पे हेलीकॉप्टर रेडी होते हैं, और अगर जरूरत है तो एक के बजाय 2 3 भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल 2 हेलीकॉप्टर, एक जी कंटीजेंसी ललन प्लान सिंह, और एक क्विक ठीक है रिएक्शन। ठीक है ललन सिंह। आगे और एक क्वेश्चन है। राजस्थान में भरतपुर में भी हादसा हुआ है, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वहां पे भी, तो उसके बारे में मैं आप ये क्या बताना कहेंगे। चाहता हूँ मैडम की, हाँ पूरी तौर पे कंफर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन प्रशासन ने उसमें भी कहीं शक पैदा कर दिया है कि इंडियन एयरफोर्स का उसमें वो संबल है। और अभी तक पूरी तौर पे कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि आगरा से ये फ्लाइट हुआ, उड़ान भरा है, और ये भरतपुर और जो आपका मुरैना है उसकी डिस्टेंस आसमानी बहुत कम है। तो यहाँ भी एक शक है, लेकिन अभी तक चार्टर है या ललन इंडियन सिंह, अभी तो एयरफोर्स से इन्फॉर्मेशन ये रिलेटेड भी है। आई है कि एक जो हादसा हुआ है वहां का एक हिस्सा जो एयरक्राफ्ट का है वो भरतपुर में पड़ा है, मतलब हाँ, इसका ताज्जुब आपने यहाँ बहुत से सही कहा। लगता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों का डिस्टेंस जो है, क्योंकि हम लोग उस इलाके में नौकरी किए हैं, 2.5 है, वो बहुत
ज्यादा होता है तो उसके कुछ पार्ट्स, कुछ उसके जो मतलब उनके जो एक्सेसरीज हैं वो हो सकता है कि भरतपुर के अंदर भी गिर सकता है। तो इसलिए भरतपुर के जो इंसिडेंट के बारे में अभी तक पूरी तौर पे कंफर्मेशन नहीं आ रही है और ये नीड टू कि दोनों का डिस्टेंस कम है और हो सकता है कि क्योंकि विंग का टकराहट हुआ है और उनके मलबा भी बहुत इधर उधर गिरे हैं तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसी दोनों में का भरतपुर के अंदर भी कुछ एसेसरी गिरा हो। तो इन सभी चीजों का इंतजार कर सकते हैं, ललन सिंह, लेकिन मुरैना का जो सुखई ललन MK सिंह, I-30 आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी ઇન્ફોર્મેશન દી ઉસ બદલ। દર્શક મિત્રો, સાંભળ્યું આપણે કે લલનસિંહ જેઓ રશિયા નિષ્ણાંત હતા અને તેમણે માહિતી આપી છે કે આ જે દુર્ઘટના સર્જાઈ છે ક્યાંક ને ક્યાંક વાતાવરણના કારણે પણ આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોઈ શકે તેમ છે। આવું પ્રથમવાર નથી બન્યું, આવું પહેલા પણ બની ચૂક્યું છે અને આ વખતે સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે બે લડાકુ વિમાનો આમને સામને ટકરાયા છે અને એમાં એક પાયલટનું તો મોત થયું છે અને બે પાયલટને હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સારી વાત એ છે કે બંને પાયલટ અત્યારે સુરક્ષિત છે। તો સમાચારમાં બસ અત્યારે આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી। સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી। નમસ્કાર।